مون بھائی ٹی وی پیش کرتے ہیں۔ کسی کو بھی فوری طور پر کیسے پڑھے؟ 18 نفسیاتی نکات۔ جب ہم کسی سے پہلی بار مل رہے ہوتے ہیں تو ہم پر معلومات کی بمباری ہوتی ہے۔ یہ معلوم کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے شخص ہیں، اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس طرح بات چیت کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کا 55% جسمانی زبان سے آتا ہے، 38% آواز کے لہجے سے اور صرف 7% جو ہم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی سے پہلی بار ملتے ہیں انہیں ان 3 عوامل کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کے علاوہ جو کسی شخص کی ظاہری شکل بتا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کی شخصیت کے بارے میں بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں جب آپ ان سے پہلی بار ملیں، سر کے نیچے سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل اشارے پر توجہ دیں۔ 1، وہ اکثر کہتے ہیں کہ آنکھیں روح کی کھڑکی ہیں۔ یہ جاننے کی کلید کہ کوئی آپ کو کس قسم کی آنکھ سے رابطہ دے رہا ہے اس کے سیاق و سباق پر غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لفظی طور پر آپ سے نظریں نہیں ہٹا سکتا، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی رومانوی دلچسپی ہے۔ دوسری طرف جب آپ کسی کو آنکھ میں دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو پیچھے دیکھنے کے لیے خود کو نہیں لا سکتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تو گھبرائے ہوئے ہیں یا ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جس کی گھورنا آپ کو ترس رہا ہے، خاص طور پر اگر وہ بہت ساکن ہے اور پلکیں نہیں جھپک رہے ہیں، تو یقینی طور پر کچھ نہیں ہے اور وہ آپ سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ 2، ابرو۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا آرام دہ ہے تو اس کی بھنووں پر ایک نظر ڈالیں۔ 3 اہم جذبات ہیں جو آپ کی بھنووں کو اوپر جاتے ہیں: حیرت، پریشانی اور خوف۔ جب آپ کسی دوست کے ساتھ آرام دہ اور پرسکون گفتگو کر رہے ہوں تو اپنی بھنویں اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ کرنا مشکل ہے نا؟ اگر کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے اپنی بھنویں اٹھاتا ہے اور موضوع ایسا نہیں ہے جو منطقی طور پر حیرت، پریشانی یا خوف کا باعث بنتا ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافی غیر آرام دہ محسوس کر رہے ہیں۔ 4، مسکرانا۔ جب مسکرانے کی بات آتی ہے تو منہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بول سکتی۔ حقیقی مسکراہٹیں آنکھوں تک پہنچتی ہیں، جلد کو کرنکتی ہوئی اپنے ارد گرد کوے کے پاؤں پیدا کرتی ہیں۔ لوگ اکثر اس بات کو چھپانے کے لیے مسکراتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے اور محسوس کر رہے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ جاننا چاہیں گے کہ کیا کسی کی مسکراہٹ حقیقی ہے، ان کی آنکھوں کے کونوں پر جھریاں تلاش کریں۔ اگر وہ نہ ہوں تو وہ مسکراہٹ کچھ چھپا رہی ہے۔ 5، وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں اور وہ صرف ان کے شاندار، بہتر نصف کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ان کے کام کے ساتھیوں کی تعریف کریں، امکان ہے کہ وہ خود ایک خوبصورت مہذب انسان ہوں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ دوسروں کو مہربان، شائستہ، محبت کرنے والے اور خوش اخلاق ہونے کی درجہ بندی کرتے ہیں، زیادہ امکان ہے کہ وہ بھی ان خصلتوں کے مالک ہوں۔ تاہم ریورس بھی سچ ہے۔ کوئی بھی جو پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے اور دوسروں کو ہیرا پھیری اور گندا قرار دیتا ہے، خود ان خصلتوں کا زیادہ امکان ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی ڈپریشن یا شخصیت کی خرابی کی تاریخ ہو۔ 6، پیری زبان۔ پیرا لینگویج غیر زبانی بات چیت ہے، جیسے کہ آپ کا لہجہ، انداز، آپ بولنے کا انداز۔ بنیادی طور پر یہ کہنے کا ایک عمدہ طریقہ ہے کہ آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی کیسے کچھ کہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو یک آواز میں جواب دے رہا ہے تو امکان ہے کہ وہ آپ کے تصور سے ناواقف ہیں اور دلچسپی نہیں رکھتے۔ طنز کا استعمال ایک اور اچھی مثال ہے۔ جب کوئی طنز کا استعمال کرتا ہے تو اس شخص کا مطلب دراصل الفاظ کے برعکس ہوتا ہے، لہذا اس بات پر توجہ دے کہ وہ الفاظ پر کیا زور دیتے ہیں اور وہ اسے کیسے کہتے ہیں۔ اس سے آپ کو ایک بڑا اشارہ ملتا ہے کہ ان کے حقیقی ارادے کیا ہے۔ 7، ایک طرف نظر۔ جو لوگ گرمجوش اور آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں ان کا جسم آپ کی طرف ہوگا اور وہ آپ کو آنکھوں میں دیکھیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ ابھی کسی سے ملے ہیں اور وہ فوری طور پر ایک طرف نظر ڈالتا ہے، یہ لاشعوری زبان کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ فرار کی تلاش میں ہے۔ 8، بار بار سر ہلانا۔
सर हिलाना आमतौर पर इस बात की अलामत होता है कि कोई अब से इत्तेफाक करता है, लेकिन मुबालगा आमेज सर हिलाना मंजूरी के बारे में तशवीश का इशारा दे सकता है। जब आप किसी को कुछ कह रहे होते हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा सर हिलाता है तो इसका मतलब है कि वो परेशान है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आइए कि आपको उनकी हिदायत पर अमल करने की सलाहियत पर शक है। दूसरी तरफ बार बार सर हिलाना लाशऊरी इशारे भी हो सकते हैं जो दूसरे शख्स के लिए आगे बढ़ने का इशारा है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई शख्स अपनी घड़ी को देखता रहता है या अपनी गाड़ी की चाबियां छूता है। 9 थोड़ी और जबड़ा। जब कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अपनी थोड़ी को रगड़ता है। हो सकता है वो ऊपर नीचे आ तरफ देख रहे हों। ये एक यकीनी अलामत है कि वो गहरी सोच में है। चिपका हुआ जबड़ा तनाव की अलामत है। इससे कत नजर के वो शख्स क्या कह रहा है ये काफी हद तक तकलीफ की निशानदेही करता है। हो सकता है बातचीत किसी ऐसी चीज की तरफ जा रही हो जिसके बारे में वो फिक्रमंद हो या उनका दिमाग कहीं और हो और वो इस चीज पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो उन पर दबाव डाल रही है। 10 करेंसी। कोई शख्स अपने आप को किस तरह उठाता है इससे आपको उनके खुद एतमादी के बारे में कुछ इशारा मिल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपने कंधे पीछे रखकर सीधा चल रहा है और सीधा आगे देख रहा है, जो इस बात का इशारा देता है कि वो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और एतमाद रखते हैं। ताहम अगर कोई चलते वक्त जमीन की तरफ झुक रहा है तो ये बहुत मुख्तलिफ तासुर देता है। इसका लाजमी तौर पर यह मतलब नहीं है कि उनमें खुद एतमादी कम है, लेकिन ये वो पैगाम है जो इससे मिलता है। 11 हाथ रगड़ना। यह ख्याल किया जाता है कि हाथ वही नशर करते हैं जो सर सोच रहा है। जब कोई शख्स अपने हाथों को आपस में रगड़ता है तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वो किसी चीज के बारे में मुस्बत एहसास रखते हैं। लोग आमतौर पर ऐसा इस वक्त करते हैं जब वो मुस्तकबिल में किसी अच्छी चीज के बारे में पुरुम्मीद होते हैं और वो उसके बारे में पुरजोश होते हैं। 12 मुसाफहा। आप किसी शख्स के मुसाफहा से बहुत कुछ बता सकते हैं। नर्म और चिपचिपा और उनके मुती या पुश ओवर होने का इम्कान है। बहुत सख्त और कुचलने वाले और ये मुमकिना तौर पर दबंग अक़साम है। वक्त की लंबाई भी अहम है। बहुत लंबा और ये अजीब है, लेकिन बहुत छोटा होना किसी किस्म के तसादुम की निशानदेही कर सकता है। ये मुमकिन है कि वो शख्स आपके साथ गहरा ताल्लुक नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। 13 अंदर आ दौर झकना। अगर कोई शख्स आपकी तरफ झुकता है तो ये इस बात का वाज़े इशारा है कि वो आपके कहने में दिलचस्पी रखता है। जो आपको मालूम नहीं होगा वो ये है कि ये एहतराम की अलामत भी है। जब लोग बातचीत के दौरान आपके करीब आते हैं और आपकी तरफ झुकते हैं तो ये जाहिर करता है कि वो आप पर एतमाद करना चाहते हैं। ये आपको काबिल एतमाद और काबिल कदर महसूस करता है। अगर कोई पीछे झुकता है ताहम वो जाहिर करता है कि वो गुफ्तगू से थक चुके हैं या शायद वो किसी वजह से बेचैनी महसूस करते हैं। 14 बच्चे को पकड़ना। ठीक है, ये एक अजीब लग सकता है, लेकिन ये जानना अच्छा है। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और वो सिर्फ एक नई माँ बन रही है, देखो वो बच्चे को किस बाजू से पकड़ते थे। मुतालियात से पता चलता है कि खुश रहने वाली माएँ अपने बच्चों को बाईं बाजू में पकड़ती हैं, जबकि दबाव और अफसरदा माएँ अपने बच्चों को अपने दाएं बाजू में पकड़ती हैं। 15 बाजुओं और टांगों को क्रॉस किया गया। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत की है जिसने अपने बाजुओं या टांगों को पार कर दिया हो जब आप उनसे बात कर रहे थे? अगर आप पहली तारीख पर हैं या अगर आप किसी को नया ख्याल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अच्छी अलामत नहीं है। क्रॉस शदा बाजू और टांगें जिस्मानी रुकावटें हैं जो तजवीज़ करती हैं कि दूसरा शख्स आपकी बातों के लिए खुला नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो मुस्करा रहे हैं और खुशगवार गुफ्तगू में मसरूफ हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहानी बताती है। नफ्सियाती तौर पर क्रॉस टांगें या बाजू इस बात का इशारा देते हैं कि एक शख्स ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर उसके सामने मौजूद चीज़ों से बंद है। इसी नोट पर किसी के कदमों की समत भी काफ़ी जाहिर होती है। एक शख्स जो आपको पसंद करता है दोनों पाँव आपकी समत में होंगे, ताहम अगर उनके पाँव दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास काफ़ी है और वो जाना चाहते हैं। 16 जूते।
किसी शख्स के जूते आपको उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। बज़ाहिर हम सब लोगों के जूतों के बारे में फैसले करते हैं, लेकिन मुताले से पता चलता है कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आसाबी लोगों के पास नए या बहुत साफ जूते होंगे। मिलनसार कस्में अमली जूते पहनेंगी। पुरसुकून लोगों को गैर आरामदेह जूतों से लगाव होता है और जारहाना लोग टखनों के जूते पहनते हैं। जरा अपने जूतों पर एक नजर डालें। क्या आपकी शख्सियत की किस्म उनके साथ फुट बैठती है? 17 मजमूई तौर पर ज़ाहिरी शक्ल। कोई शख्स अपने आप को किस तरह पहनता है और किस तरह पेश करता है, इसके बारे में जल्द ही कह सकता है। अगर इस शख्स के बाल अपनी जगह पर हैं, वो कपड़े दबाए हुए हैं और वो स्टाइल पर तवज्जो देते हैं, तो वो बहुत तफसील पर मबनी हो सकते हैं। ज्यादा आरामदेह अलमारी या बेड हेड वाला कोई तख्लीकी या सिर्फ गंदा हो सकता है। और फिर किसी ऐसे शख्स को ले लो जो बेनकाब और बदबूदार नजर आए। वो सिर्फ एक वाकई सुस्त शख्स हो सकते हैं। 18 बॉडी लैंग्वेज कॉपी करना। अगर आपने पहले कभी लोगों को पढ़ने की कोशिश नहीं की है, तो ये वो चीज है जिस पर आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन मुस्तकबिल में इस पर पूरी तवज्जो दें, क्योंकि जब कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज की नकल करता है तो उसका मतलब है कि वो आपके बारे में इतना अच्छा महसूस करते हैं कि वो आपके साथ हम आहंग होना चाहते हैं। ये इस बात की अलामत है कि बातचीत ठीक चल रही है और ये कि दूसरा फरीक आपके पैगाम को कबूल कर रहा है। ये लाशऊरी तौर पर किया जाता है, क्योंकि कोई भी किसी की नकल करने के इरादे से नहीं घूमता है। लेकिन जब हम लोगों के साथ राहत महसूस करते हैं तो हमारा रुझान वही होता है जो वो करते हैं। हम में से कुछ लोग उन अलामात को पढ़ने में बहुत अच्छे हैं जो लोग छोड़ देते हैं, जबकि दूसरे इतने बुरे हैं कि उन्हें दूसरे शख्स को बाहर आने की जरूरत होती है और सीधा उन्हें बताना पड़ता है कि उनके दिमाग में क्या है। लोगों को पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो ये एक लाजवाब महारत है। बिलाशुबा हर कोई मुख्तलिफ है, इसलिए उनके कौल व फेल की तर्जुमानी हमेशा दुरुस्त हो सकती है नहीं, लेकिन उम्मीद है कि इन तजावीज़ के साथ आप लोगों को पढ़ने में बेहतर बनने की राह पर गामजन होंगे। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप आमतौर पर उनके बारे में सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको इस वीडियो का मजा आया तो उसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम उसे बनाते रहें।